Good noon, all of you. Chapter 1, Solid State, Calculations involving unit cell dimensions. The name of the topic it is, in which we have to calculate the number of an atom, or else you can say the density, okay, based on its formula. And this is also very much important topic for JEE and NEET session. Okay, yesterday also the topic which was there in the noon session, it was very much important. Okay, today also the topic, the calculation involving the unit cell dimension, is very much important. Okay, so let us start. First of all, calculations involving the unit cell dimensions. From the unit cell dimension, it is possible to calculate the volume of the unit cell. Even we can calculate the volume of the unit cell also by this dimension. If you know the density of the metal, we can calculate the mass of the atoms in the unit cell. So once again, from the unit cell dimensions, you can calculate the volume of it. And second thing, what they are saying, if you know the density of the metal, then we can calculate the mass of the unit cell also. Okay. The determination of the mass of the single atom gives an accurate method of determination of the Avogadro constant, that is Na, that is 6.022 into 10 raised to 23. So if you know the determination of mass of the single atom, if you wanted to identify or determine the mass of single atom, gives an accurate method to determine the Avogadro's constant. Okay. Now suppose age length of a unit cell of a cubic crystal determined by, once again, 1 mark MCQ, by which method it can be determined. It is by the X-ray diffraction. Okay. Is A. Age length is given, which has been determined by the X-ray diffraction method. कौन सी मेथड से डिटरमाइन किए? X-ray diffraction methods. If it is A. D. D जो है D, the density of the solid substance. Smaller d is the density of the solid substance, and capital M, that is the molar mass. Okay, once again, suppose age length of the unit cell of a cubic crystal, it has been determined by the X-ray diffraction. वो कितना मिला हमें? Small a. Small d जो है density, ठीक है, capital M is the molar mass. Okay. Now, calculations involving in a unit cell dimension. In case of a cubic crystal, the volume is L multiplied by B multiplied by H, that is length, breadth and height. And if all the edges of length, breadth and height, it is smaller a, then the volume of a unit cell would be what? A cube. Okay, unit cell का volume क्या रहेगा? A cube. Okay. Now, mass of the unit cell is equal to the number of atoms in a unit cell multiplied by mass of each atom, that is Z multiplied by M. Now here the Z is the number of atoms present in one unit cell and small m is the mass of a single atom. Once again, in case of the cubic crystal, the volume would be A cube. Okay. Then mass of the unit cell is equal to number of atoms in unit cell multiplied by mass of each atom, that is Z multiplied by M. Okay. So mass of an atom, okay, mass of an atom present in the unit cell is equal to
Small m is equal to capital M upon Na. Now capital M is the molar mass, whereas Na is the Avogadro number. Okay, Na is the Avogadro number. Therefore, the density of the unit cell, अभी ये तो हमें पता ही ऑलरेडी भाई डेंसिटी क्या है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ओके, वंस अगेन therefore the density जो है that is mass upon volume. Okay, now we'll be keeping all this. Therefore the density of a unit cell, that is mass upon volume of the unit cell. Okay, the mass of the unit cell, that is Z into M. Okay, Z into M. अभी ये Z into M कहाँ से आया भाई? ठीक है, तो ये रहा देखो Z into M, mass of an atom, number of atoms in unit cell multiplied by mass of each atom, that is Z multiplied by M. Okay, so Z into M in a numerator, whereas volume of the unit cell, okay, the volume would be, volume क्या रहेगा, volume of the unit cell, तो it would be the A cube, that is L into B into H, तो वो हो जाएगा A cube. Okay, so now Z will remain same. Okay, M means what? M, capital M, not capital M, sorry, small m. तो ये रहा देखो, स्मॉल m की वैल्यू है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये रही देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, कैपिटल M अपॉन Na. ठीक है, दैट वी हैव टू प्लेस इट, वो रखना पड़ेगा हमें. ठीक है, ये रहा देख लो भाई, जो यहाँ पे ये स्मॉल m है उसकी जगह पे हमने क्या रखा, कैपिटल M अपॉन Na, whereas Z अपॉन A क्यूब का A क्यूब सेम टू सेम. ठीक है, सो इसमें आप जो डेंसिटी है उसको हम स्मॉल d बोलेंगे, Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू N. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला के ऊपर से बहुत सारे MCQ, ठीक है, अभी तो जो है वो एग्जांपल्स और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है, एग्जांपल्स एज वेल एज द इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे हम, एग्जांपल्स एज वेल एज द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो एग्जाम्पल और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो सॉल्व सबसे पहले हम करने वाले हैं. ठीक है, सो वो सॉल्व करेंगे तो उसके पहले जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, D is equal to Z into M upon A cube into N. ठीक है, नाउ डेंसिटी जो है यूनिट सेल का है. ठीक है, सब्सटेंस का जो डेंसिटी रहेगा वही हो जाएगा यूनिट सेल का डेंसिटी. ठीक है, density of solid can always be determined by this method as well as by the other methods also. It is not so only this method is there. Okay, out of the 5 parameters, कौन से 5 parameters? Density, Z, M, small a, then Na, that is Avogadro number. If any 4 are known, अगर ये पांचों में से अगर आप कोई 4 जानते हो, ठीक है, तो 5th वन आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यू कैन एबल टू डिटरमाइन द 5th वन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. ओके, यही चीज हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे. ठीक है, तो एग्जांपल में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. तो क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिया गया है देखो क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज बीसीसी, एक एलिमेंट है जो बीसीसी वाला स्ट्रक्चर है, विद सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर. ए हमें दे दी गया है, ए की वैल्यू 288 पिकोमीटर है. ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट भी दे दी है, दैट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट. ओके, मास दे दिया है हमें 208 ग्राम. ठीक है, तो उसमें हमें क्या, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वो हमें ढूंढना है. ठीक है, इट इज वेरी इजी. Okay, so first of all
वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज L into B into H, दैट इज A into A into A, इट मींस A क्यूब, A का क्यूब है। सो A की वैल्यू हमें दे दी गई है, दैट इज 288 पिकोमीटर। सो 288 पिकोमीटर का होल क्यूब कर दो भाई। ओके, सो 288 इंटू 10⁻², अभी देखो पिकोमीटर दिया है, हमें आंसर चाहिए भाई मीटर में, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो। सो पिकोमीटर टू मीटर वी आर अवेयर, दैट इज 10⁻⁻12 पावर, ठीक है। उसको सेंटीमीटर में करो तो वो -10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो 288 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब, ठीक है। सो 288 इंटू 288 इंटू 288 करो, चलो मैं भी करता हूँ, 288 इंटू 288 इंटू 288, ठीक है, तो वो हमें दे रहा है 2387887 ओके, 23887 ठीक है, एंड देन 10 3s are 30, okay, minus 30 it would be there, and then we need to shift, okay, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट मिनट, कैलकुलेटर देख लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके कितना शिफ्ट हमें करना है। ये रहा देखो, ओके, 23887 872, ठीक है, इतना आंसर आएगा। उसको हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 38 10⁻⁻30, उसको ट्विस्ट करो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 ट्विस्ट करेंगे हम, ठीक है, तो 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, -23, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो आंसर में मिलेगा 2.38 लिखो, पर 38 के बाद 8 ही आ रहा है, वो 5 से ज्यादा है, तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास दे हैव गिवन बच्चों, दैट इज 208 ग्राम में, डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी आल्सो दे हैव गिवन, दैट इज 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी दूसरा डिवीजन करना है, 208 डिवाइडेड बाय 7.2, तो वो हो जाएगा 28.88, ठीक है, वो हो जाएगा 28.88। एक ही मिनट, थोड़ा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा देखो 28.88, ओके, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन दिस वॉल्यूम, ठीक है, वो हमें ढूंढना है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, ऑलरेडी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी हमारे पास है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन दिस वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, वो कितना है 28.88, तो उसको न्यूमरेटर में डालो भाई, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल डाल दो, दैट इज 2.39 इंटू 10⁻⁻23, दोनों का रेशियो ले लो आप, ठीक है, तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई 28.88, चलो कर लेते 28.88 डिवाइड बाय 2.39, ठीक है, तो 12.08, ठीक है, -23 जो है ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा 12.08, ओके, चलिए, तो इंटू 10⁻23, ओके, यूनिट सेल्स, ओके। नाउ अभी देखो बीसीसी स्ट्रक्चर दिया है भाई, ठीक है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वुड बी 2, दो रहेंगे,
तो जो 12.08 इंटू 10⁻23 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1.3। ओके, चलिए नेक्स्ट जाएंगे एग्जाम्पल 1.4। ओके, सो एग्जाम्पल 1.4 का सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है। Studies show that the copper crystallize in an FCC unit cell, face centered cubic unit cell दिया गया, with the cell edge A दे दिया गया है हमें 3.608 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, in a separate experiment copper is determined to have density दे दी गई है, that is 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास m हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी एफसीसी है, तो z की जो वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो 4 होंगे बच्चों। ठीक है, 4। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, डेंसिटी का, उसमें मास को सब्जेक्ट बना दो आप। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एज लेंथ का क्यूब, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज z। सो कैपिटल M इज इक्वल टू d इंटू Na इंटू a क्यूब अपॉन z। अभी सभी चीज डेंसिटी दी है भाई, एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं, एक ए दिया है, एज लेंथ दे दी गई है, जेड हमें पता है, एफसीसी की वजह से वो 4 आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज रेडी है भाई। तो चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। डेंसिटी 8.92, Na दैट इज 6.022 into 10⁻23, ठीक है, ए क्यूब दैट इज 3.608 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, उसका क्यूब पहले करेंगे। ठीक है, तो सब और अपॉन z की वैल्यू 4 डाल देंगे। सबसे पहले 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.608 लेके आओ, उसका जो आंसर आए, और 8 3 24 माइनस, ठीक है, उसका जो आंसर आए उसको वहां पे रखो। उसके बाद में उसको जो आंसर आए उसको 6.022 से मल्टीप्लाई करो, उसको 8.92 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ठीक है, 8 3 24 जो था, ठीक है, माइनस में, और आगे 23 प्लस है, तो एक माइनस 10⁻⁻1 बचेगा, तो और पावर को स्किप कर दो भाई, घुमाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। तो बहुत बढ़िया और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, डेंसिटी के फॉर्मूला के ऊपर से। ठीक है, और एकाध एमसीक्यू पूछता ही है जी नीट में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम करेंगे, जी नीट का सेशन आएगा तो उसमें भी बात करेंगे। ठीक है, पर अभी चैप्टर के अंदर है, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.5, सिल्वर फॉर्म्स। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ऊपर जो दिया हुआ है, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लेटिस and X-ray studies of its crystals so that the edge length of its unit cell वो दे दी गई है 408.6 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दिया है दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास सिल्वर का दे दिया गया है, दैट इज 107.9 U। ओके, तो उसकी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सीसीपी स्ट्रक्चर है, तो उसमें Z की जो वैल्यू है वो होती है 4 बच्चों। ठीक है, HCP एंड CCP दोनों में। ना मोलर मास ऑफ द सिल्वर दे दिया गया हमें 107.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम को केजी में यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सो 107.9 इंटू 10⁻³ लगा दो, किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में से केजी में कन्वर्ट हो गया इजीली। ठीक है, एज लेंथ जो दी है वो हमें दे दी गई है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं 408.6 पिकोमीटर में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो भाई। तो 408.6 इंटू पिकोमीटर में से मीटर में जाओगे तो 10⁻⁻12 लग जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया, केजी में कन्वर्ट कर दिया मास को। ठीक है, और यूनिट सेल का जो एज लेंथ दिया गया है पिकोमीटर में, उसको भी हमने किस में, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो नाउ द डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। सभी की वैल्यू रख दो भाई, Z की वैल्यू 4 है, M की वैल्यू दैट इज 107.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, अपॉन में ए क्यूब, ए क्यूब क्या है भाई, 408.6 इंटू 10⁻12, उसका क्यूब मतलब कि 408.6 मल्टीप्लाइड बाय 408.6 मल्टीप्लाइड बाय 408.6। ठीक है, तीनों का जो आंसर आ रहा है, और फिर 12 3 36,
ठीक है, -36 वो रख दो साइड में, ठीक है, 6.022 एवोगेड्रो आ जाएगा। तो 408.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऐसे किया, 408.6 408.6 408.6, इसका जो आंसर आ रहा है उसको 6.022 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए उसको डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है। 36 माइनस में से 23 को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आए उसको डिनोमिनेटर में ही रखो, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या करना है भाई, 107.9 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, जो आंसर आया उसको डिनोमिनेटर से आंसर से डिवाइड कर लो, ठीक है। और फिर पावर जो भी चेंज हो रहा है उसको चेंज कर लो, ठीक है। सो 10.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो भाई, तो 10.5 का 10.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1.5, एग्जांपल नंबर 1.5, ओके। देन 1.14 इंटेक्स क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ओके। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, सबसे पहला ऊपर वाला देखेंगे हम, इंटेक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, ओके। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के अंदर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर मॉलिक्यूल का कितना होने वाला है, तो वो है 4, ठीक है, 4 होने वाला है। सो द आंसर विल बी, द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, ओके। देन 1.15 क्वेश्चन नंबर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP दे दिया है, कंपाउंड है, ओके। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids in 0.5 mole of it, and how many of these are tetrahedral void? So सबसे पहले HCP दे दिया गया है, ठीक है, और 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल HCP का हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ HCP lattice is equal to 0.5 into Avogadro, ठीक है। तो 2, sir can you send, please send this photos in a group. See, photos I am not having, beta, okay. I recording is taking place just now, okay, so that you can see this, okay, the videos, and you can write it, okay. And along with that you can able to understand it also later on if you want them, okay. So the recording is ongoing, okay. The photographs I am not having, okay. So once again, the total number of the tetrahedral voids, that is 2 into 0.5, okay, into n, that is 6.022 into 10⁻20. So the total number of voids is equal to number of octahedral voids plus number of tetrahedral voids. Number of octahedral voids are 3.5 into Na करो, ठीक है, 0.5 into Na, तो वो 3.011 आधा हो जाएगा into 10⁻23, प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है भाई, 6.022 into 10⁻23, डबल उसका, ठीक है, Na जितना, डबल बोलो, 0.5 into Na, उसका डबल बोलो तो वो 6.022 into 10⁻23 हो जाएगा, 0.5 मतलब 1/2, यानी एवोगैड्रो का आधा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एवोगैड्रो हो जाएगा, दोनों के एडिशन कर दो भाई, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा आपको 3.011, ओके, प्लस 6.022, दोनों का एडिशन कर दो तो ये हो जाएगा 369.033 into 10⁻23, दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। Means videos are there in your YouTube channel. Yes, videos are available, okay, not all, okay. See, when once let me finish this session, after finishing this session, okay, the recording I will post in the YouTube, okay. Even inside the group also I used to post the link of this video, okay. So from there also you can refer it, you can see it, okay. After that, 1.16, a compound is formed by two elements, M and N, capital M and capital N. The element N forms CCP. N जो है N, Narayana, N for Narayana, which is having CCP structure. And M occupy, capital M, okay, occupy 1/3 of tetrahedral voids. पूरा का पूरा नहीं, कितना, 1/3 of tetrahedral voids. Then what is the formula of the compound? तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सो टोटल नंबर ऑफ एन एटम्स पर यूनिट सेल, सीसीपी की वजह से 4, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल, ठीक है,
इट वुड बी टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड कितना है, 8 टोटल है, और उसका 1/3 मतलब कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है, बाय m एटम्स। तो m एटम कितना हो जाएगा, 8/3। सो रेशियो ऑफ m एंड n पर यूनिट सेल 8/3 जेम 4, ठीक है, 8/3 जेम 4। सो 4 2 8, 2 जेम 3 वुड बी द आंसर। सो फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड क्या रहेगा, M2N3, ओके, M2N3, ठीक है, ये फॉर्मूला के बेस्ड है, ठीक है, जो प्रीवियस सेशन में हम पढ़े थे। ठीक है, आफ्टर दैट 1.17, which of the following lattice has the highest packing efficiency, simple cubic, body centered, hexagonal। क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक, उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4 के आसपास है, बॉडी सेंटर में 68 है, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज में 74% है। आज ही हम पढ़े ये, तो एचसीपी का सबसे ज्यादा है भाई, मैक्सिमम, तो वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ। ठीक है, देन 1.18, an element with a molar mass दे दिया गया है 2.7 into 10⁻² kg per mole, forms a cubic unit cell with edge length दे दिया है 405 पिकोमीटर, डेंसिटी दी है भाई 2.7 into 10⁻3, ये 103 नहीं है भाई, 10⁻³ है, kg per meter cube। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, वो हमें फाइंड करना है। पर नेचर के लिए बच्चे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी के फॉर्मूला में जो z है, z की वैल्यू लेके आओ। ठीक है, z की वैल्यू लेके आएंगे, उसके ऊपर से हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या नेचर है। मोलर मास दिया है, एज लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 405 into 10⁻⁻10। ठीक है, पिकोमीटर में से मीटर में जाओ तो 10⁻12 आता है, और 2 पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है तो 4.05 10⁻10 हो जाएगा मीटर में। ठीक है, डेंसिटी दे दी गई है। फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, जेड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जेड को सब्जेक्ट बना दो भाई। ठीक है, तो जेड को सब्जेक्ट बना दे हम, तो हमारे पास डेंसिटी है 2.7 into 10⁻3, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए वी आर हैविंग दैट इज 4.05 into 10⁻10 उसका होल क्यूब। ठीक है, एंड देन 2.7 that is density 2.7 into 10⁻²। okay, so here if you see z is equal to 4 आ जाएगा, z की वैल्यू, तो यूनिट सेल जो है दैट वुड बी दी 4 हो तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, मास देखो सब चीज दे दी गई है, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.7 into 10⁻², तो वो रख दो डिनोमिनेटर में, उसको डिवाइड कर लो भाई। ठीक है, पहले न्यूमरेटर का आंसर लेके आओ, 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 4.05, और 10 3 30 -30। ठीक है, 4.05 3 वाला जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको 2.7 से मल्टीप्लाई करो, उसको 6.022 से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड बाय 2.7 कर दो, या फिर 2.7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर दो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगेगा। z की वैल्यू 4 आएगी, मतलब कि एफसीसी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, एनी डाउट्स आर देयर इन दिस, यू कैन आस्क मी। ओके।